नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्र शासित प्रदेश को कश्मीरियत की याद दिला दी है और राष्ट्रपति ने कहा कि हिंसा कभी भी कश्मीरियत का हिस्सा नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य से ये दैनिक जीवन की सच्चाई बन गई है। लोकतंत्र में सभी मतभेदों को खत्म करके पुनर्गठन और नागरिकों की क्षमता का पूरा उपयोग करने की ताकत है। और राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जैसे जैसे कश्मीर शांति और खुशहाली के एक नए दौर की तरफ अग्रसर हो रहा है, वैसे ही यहां पर कई नई रोमांचकारी और सुखद संभावनाएं नजर आने लगी हैं। पूरा भारतवर्ष जहां लोगों को गर्व और प्रशंसा की भावना के साथ देखा जा रहा है, तो देश के विभिन्न क्षेत्रों में सिविल सर्विसेज हो या फिर खेल या फिर उद्यमशीलता, कश्मीरी युवा नई ऊंचाइयों को छू रहा है। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के 19वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है कि कश्मीर की शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया गया। जो हिंसा कभी कश्मीरियत का हिस्सा नहीं रही, वे रोजमर्रा की जिंदगी में आम बात चल रही है। तो हिंसा कश्मीरी कल्चर को खत्म कर रही है और अस्थायी चीज है, और ये एक वायरस की तरह है जो पूरे शरीर की ही यहाँ जो एक शरीर के अंदर घुसता हुआ नजर आ रहा है, यानी पूरे शरीर पर एक वायरस की तरह अटैक कर रहा है। तो राष्ट्रपति ने कहा कि कश्मीर कई संस्कृतियों के मिलन का केंद्र है और मध्यकाल से यहाँ लाल देव ने भी कई आध्यात्मिक परंपराओं को साथ लाने का रास्ता दिखाया था। उन्होंने कहा कि अब कश्मीर की खोई हुई आभा वापस दिलाने के लिए प्रयासों की शुरुआत हुई है। तो ललेश्वरी की रचनाओं में हमें कश्मीर की सांप्रदायिक सद्भावना और शांतिपूर्ण जो सह अस्तित्व है, इसकी संस्कृति के दर्शन होते हैं। Hinduism and Buddhism flourished here, as did Islam and Sikhism after it arrived here in later centuries. Kashmir is also the meeting point of various cultures. In medieval times, it was of course Lal Ded, who showed the way to bring together various spiritual traditions. In the works of Laleshwari, you can see how Kashmir provides the very template itself of communal harmony and peaceful coexistence. This is also reflected in all aspects of life here, in folk arts and festivals, in food and dress. The core nature of the place has always been inclusive. Almost all religions that came to this land embraced a unique feature of Kashmiriyat that shunned orthodoxy and encouraged tolerance and mutual acceptance among communities. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to urge upon the younger generation of Kashmir to learn from their rich legacy. They have every reason to know that Kashmir has always been a beacon of hope for the rest of India. Its spiritual and cultural influence has its imprint all across India. It was most unfortunate that this outstanding tradition of peaceful coexistence was broken. Violence, which was never part of Kashmiriyat, became the daily reality. It is alien to Kashmiri culture, and it can only be termed as an aberration, a temporary one, much like a virus that attacks the body and needs to be purged. Now there is a new beginning and determined efforts to regain this land's lost glory. Democracy, I firmly believe, has within it a capacity to reconcile all differences and also a capacity to bring out the best of citizens' potential. Kashmir happily is already realizing this vision. Democracy lets you build your own future, a peaceful and prosperous tomorrow. The youth and women especially have high stakes in it, and I am sure they will not let go of this opportunity to rebuild lives and rebuild Kashmir. As Kashmir has turned a new leaf, exciting new possibilities are opening up.
The whole of India is watching you with admiration and pride. Kashmiri youth are scaling new heights in a variety of sectors, from civil service exams to sports and entrepreneurial ventures. तो दूसरी ओर इस दीक्षांत समारोह में मौजूद जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में बढ़ रही साक्षरता दर का भी हवाला देते हुए अपने आप को शिक्षित कर रही बच्चियों की पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि इस दीक्षांत समारोह में 94 में से 66 मेडल बच्चियों ने हासिल किए हैं, जिससे ये साबित हो गया है कि अब हर क्षेत्र में काफी आगे हमारी बच्चियां बढ़ चुकी हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अपने कौशल और प्रतिभा के बल पर जम्मू कश्मीर की बच्चियां इस केंद्र शासित प्रदेश में विकास के नए संकल्प की ओर देखी जा रही हैं और नए संकल्प के लिए सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं, जो हमारे लिए गर्व की बात है। और ये सफर हालांकि आसान नहीं है, क्योंकि 1905 में जहां जम्मू कश्मीर में मात्र 17 स्टूडेंट्स को छात्रवृत्तियां दी जाती थी, वहीं आज ये आंकड़ा 8 लाख तक पहुंच चुका है। ताकत बनकर, और आज मुझे गर्व है कि साल कश्मीर यूनिवर्सिटी के 94 गोल्ड मेडल्स में 66 हमारी बच्चियों ने, हमारी बहनों ने प्राप्त किया है। मैं उन बच्चियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज कंप्यूटर साइंस हो, इंजीनियरिंग हो, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, MBA, मास्टर ऑफ डिजाइन जैसे कोर्सेस में जम्मू कश्मीर की बच्चियों ने कश्मीर विश्वविद्यालय में ही नहीं, जिन दीक्षांत समारोहों में मैं गया हूं, मुझे लगता है कि वो बच्चों से काफी आगे बढ़ रही हैं। ये हम सबके लिए प्रसन्नता की बात है। मैं समझता हूं कि अपने स्किल तथा टैलेंट से आज हमारी बच्चियां जम्मू कश्मीर के विकास में नए संकल्प के साथ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी हैं। ये हम सबके लिए खुशी की बात है। और यह सफर आसान नहीं रहा है। 1905 में जहां मात्र 17 स्टूडेंट स्कॉलरशिप दी जाती थी, वहीं आज इस यूटी में 8 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं। और इसके लिए फिर से एक बार मैं देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। शिक्षा जब एक आंदोलन बन जाता है, जब एक सामूहिक जिम्मेदारी बन जाती है, तभी मुझे लगता है कि भावी पीढ़ी की प्रगति होती है। अगर हम अपनी प्राचीन संस्कृति को देखते हैं तो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार सीआरपीएफ ने आज अपना 83वां स्थापना दिवस देश भर में धूमधाम के साथ मनाया है। साल 1939 में ये फोर्स क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के नाम से वजूद में आई थी और देश के आजाद होने के बाद तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका सीआरपीएफ नामकरण किया था। स्थापना दिवस पर आज सीआरपीएफ की 121वीं बटालियन के जिला कठुआ के हीरानगर स्थित मुख्यालय में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2015 में राजबाग थाने पर हुए आतंकी हमले में शहीद होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की मुहिम को भी आगे बढ़ाया गया। अधिकारियों व जवानों ने पौधे लगाकर इस मुहिम में अपना योगदान दिया। बटालियन के अधिकारी संजय त्रिपाठी ने सभी को सीआरपीएफ के स्थापना दिवस की बधाई दी। इतिहास है, हमारे जो शहीदों ने इस देश के लिए काम किया है, इस देश के लिए शहादत दी है, और हमारे लोगों ने जो इस देश की हर आपदाओं में, चाहे वो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन हो, चाहे इंसर्जेंसी ऑपरेशन हो नॉर्थ ईस्ट में, चाहे जेएमके में, चाहे आज की डेट में अगर आप देखें तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म नक्सल इलाकों में इसकी तैनाती हो, चुनाव जो कि जिसे इस फोर्स के रूप में ही जाना जाता है कि सीआरपीएफ अगर नहीं है तो चुनाव भी सही ढंग से संपन्न नहीं हो सकता है। राष्ट्रीय आपदाएं, कम्युनल राइट्स, सांप्रदायिक दंगे, लॉ एंड ऑर्डर, यानी जिस भी प्रकार के बारे में जो इतिहास के साथ आज अपना 83वां रेजिंग डे मना रही है। एक बार पुनः आप लोगों को इस रेजिंग डे के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि जिस प्रकार से आप लोग अपनी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से ड्यूटी करते आ रहे हैं, आप इस चीज को
तो जम्मू में रेलवे हेड के नजदीक बनाए गए पंचायत भवन को किसी एजेंसी के हवाले कर दिए जाने पर पंचायत के प्रतिनिधियों में बेहद रोष देखा गया। ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के प्रधान अनिल शर्मा ने आज ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक से मुलाकात कर उन्हें इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा और पंचायत भवन को जल्द खाली करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि ये पंचायत भवन अन्य जिलों से आने वाले पंच सरपंचों के जम्मू में ठहरने के अलावा पंचायत कॉन्फ्रेंस के कार्यक्रमों के इस्तेमाल में लाया जाना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसे एक एजेंसी के हवाले कर दिया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायती राज का पंचायत भवन जो है रेल हेड के बाहर, वो भवन जो है पंचों, सरपंचों, वीडीसी, डीडीसी के जो वर्कशॉप्स लगते हैं उनके लिए है। वहाँ पे रूम बनाए गए हैं कि अगर बाहर का डीडीसी चेयरपर्सन, वीडीसी, सरपंच साहबान अगर आए तो वहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं, वहाँ पे रूम बने हुए हैं। और ये आज के नहीं 2011-12 का ये पंचायत भवन जो है वो बना हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेट आज जम्मू कश्मीर के जो रूरल डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने जो ट्रांसफर कर दिया है, प्रोक्योरमेंट जो एजेंसी है उसको ट्रांसफर कर दिया है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फौरी तौर पे इस ऑर्डर को वापस लिया जाए और हमारा जो पंचायत भवन है वो हमारे लोगों के लिए बनाया गया है, हमारे लोगों के लिए है और हमारे लोग ही उसको इस्तेमाल करेंगे। वो चाहे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो रूरल डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे वो अगर आप आरसपुरा के उपजिला अस्पताल में इलाज करवाने जा रहे हैं तो अपना जरा ख्याल रखिए। ये ना हो कि इलाज करवाने के चक्कर में आपको वहां अपनी जान गंवानी पड़े। ये मजाक नहीं है बल्कि हकीकत है, क्योंकि इस अस्पताल की हालत इतनी झरझर हो चुकी है कि ये कभी भी गिर सकता है और छतों से पानी टपकना शुरू हो गया है और टपकता पानी और फर्श पर बना हुआ तालाब तो इसी ओर इशारा कर रहा है। साफ तस्वीरें भी आप देखिए और तो और बिजली की तारें भी यहाँ पर गीली दीवारों के साथ छूने से आपको जोर का झटका भी लग सकता है। तो इसलिए अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो अस्पताल की बजाय किसी दूसरे अस्पताल का रुख करिए। यहां इलाज करवाने के लिए आने वाले लोगों ने भी अब बदइंतजामी का प्रशासन पर आरोप लगा दिया है कि यहां पर इंतजाम नहीं किए गए हैं, बदइंतजामी की गई है। स्वास्थ्य विभाग पर सवालिया निशान लगते हुए नजर आए। साफ तस्वीरों में आप देखिए झरझर हालत किस तरह से अस्पताल की बिल्डिंग की यहां पर बनी हुई है और कुछ लोग जो यहां पर पहुंचे हुए हैं वो किन हालातों में खड़े हैं ये आपके सामने। ये जो मेरे ख्याल में 10-15-20 साल से ये बिल्डिंग बनी है, आज आप देख रहे हो इसकी बिल्डिंग का हालत क्या है। ये पूरा तालाब बना हुआ है, पानी इकट्ठा नीचे ऊपर से चोरी है, डॉक्टर काम करने, पेशेंट आ रहे हैं, दिखा रहे हैं बेचारे, ये कहाँ जाएंगे। अगर ये बिल्डिंग खत्म होगी, गिर गई तो क्या बनेगा, इसका जिम्मेदार कौन होगा। दूसरी बिल्डिंग पुरानी है, वो जर्जर है, उसमें एक्सरे वाले चले हैं, पर्ची काटने चले हैं, डेंटल वाले बैठे हैं। अगर कोई मुलाजिम या कोई पेशेंट कैजुअलिटी होगी, इसका कौन जिम्मेदार होगा। ये सरकार कहाँ सोई हुई है, क्या कर रही है। करोड़ों रुपए लगा के नई बिल्डिंग बनाई तो ये शिफ्ट क्यों नहीं करते, उसको तो सिर्फ डिमॉलिश करना है। उसको एक जेसीबी लगा के जिसको मटीरियल मिलेगा वो मुफ्त से उठा लेके जाएगा। मगर ऐसी बेशर्म सरकार आज में बहुत देर बाद फिर दोबारा इसकी आवाज बंद कर रहा हूँ कि इसे जल्दी से ठीक कीजिए, उनके खिलाफ इंक्वायरी बिठाइए, जिन्होंने ये बिल्डिंग बनाई है उसको सजा होनी चाहिए। और जो अफसर मौके के जो इंजीनियर थे जिनका काम था इसको चेक करना, क्यों गलत बिल्डिंग बनी, क्यों आज ये पानी नीचे चल रहा है नई बिल्डिंग से, बड़े शर्म की बात है। हॉस्पिटल है, सब तो बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी हालत देखो की बनी है। पेशेंट आया लक लक जिन्ना पानी है ऐसा खड़ा है। बिजली बोर्ड देखो सारा किस तरह पानी चोरिया कंधा के मुँह है, लैंटर चोरिया, वायरिंग शार्ट हो या हर एक पेशेंट कोई तकलीफ हो या कौन इतने जिम्मेदारी हॉस्पिटल है। सरकार इन्ना महंगे वो कर रही है, हर एक चीज़ टैक्स लाई जा रही है, टैक्स ला रही है। पेट्रोल इन्ना महंगा करता उन्होंने, 102 रुपये लीटर पेट्रोल इन्ना ले रही गौरमेंट, कितने जा रहे हैं। पर इतने हॉस्पिटल ही नहीं है कि जो सब तो मेन जितना पेशेंट आने ना है, लोग जितना सब तो जिन्हें बीमारी है वगैरह सब इतने आने ठीक होने वास्ते इतने सेफ होंगे। फिर बंदा आई किसी करती है कि अगर रोई है जाके सरकार जाके उत्थे बैठी अपने आराम करके डॉक्टर ने जिते अज दसना जाके उत्थे अं डेग डेग के पैने पे चिक्कर के बिजली सारी शार्ट है, जरा कंध नाल हथ लग जाए तो कंध शार्ट मार रही है। तो गौरमेंट ने देखना चाहिए अं इन्ना ज़्यादा। तो कहते हैं कि मौत का समय और जगह पहले से ही निश्चित होती है। ये आज धर्मनगरी कटरा में तब साबित हो गया जब मुख्य बस स्टैंड पर बस ने एक 3 साल के बच्चे को कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल हरियाणा के सिरसा से एक परिवार मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आया हुआ था कि यात्रा पंजीकरण कक्ष के ठीक सामने एक बस ने इस परिवार के 3 साल के बच्चे को अपनी चपेट में ले लिया।
इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर उसे अस्पताल पहुंचाया। तो किश्तवाड़ में आज पेश आए सड़क हादसे में 8 लोग घायल हो गए हैं। ये हादसा तब पेश आया जब छात्रों से सिगड़ी बलाना की ओर जा रहा ये यात्री वाहन दुर्घटना का शिकार हो गया। घायलों को इलाज के लिए तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन की जिला सांबा इकाई ने 27% आरक्षण की मांग को दोहराया है। इकाई का कहना है कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने से पिछड़े व आरक्षित वर्ग को उम्मीद की एक नई किरण नजर आई थी, लेकिन वो किरण भी धूमिल होकर रह गई है और यूनियन ने नीट की परीक्षाओं में भी आरक्षण खत्म किए जाने पर रोष जताया। तो हमारे लोगों को बहुत आशा थी कि 370 टूटेगी, जैसे दूसरे स्टेटों में 27% लागू होगा तो हमारी JNK में ड्यूटी में भी लागू हो जाएगा। मगर 2 साल के करीब हो गया, अभी तक 1-2% ही हमारे लोगों को ये आरक्षण मिल रहा है, जो कि 27% होना चाहिए। तो जैसे नीट के एग्ज़ाम आ रहे हैं उसमें सुनने में ये आ रहा था गवर्नमेंट ने जो नीट का जो एग्ज़ाम है उसमें आरक्षण खत्म कर दिया। ये बड़े अफसोस की बात है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने और इधर LG साहब ने देखना चाहिए कि गरीब लोगों को इतना नुकसान होने का ज़्यादा नुकसानदेह बन रहा है। हमारा समाज एक आरक्षण अगर लागू नहीं होगा तो हमारे लोग सड़कों में। तो जम्मू कश्मीर के आरक्षित पिछड़े वर्ग ने आरोप लगाया है कि देश के राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए आदेशों को भी यहां निजाम नहीं मान रहा है और इस वर्ग ने जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए हुए राष्ट्रपति से अपील की है कि वे इसका नोटिस लेते हुए प्रशासन को इन आदेशों को लागू करने के आदेश जारी करें। कठुआ में आज इस वर्ग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उसे बड़ी उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदले जाने के बाद यहां केंद्र के सभी लागू हुए कानून लागू हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यहां ना तो प्रमोशन में आरक्षण मिल पाया और ना ही पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया। पास किए प्रेजिडेंशियल रूल्स ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਹੈ JNK ਵਿੱਚ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ JNK ਵਿੱਚ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ SC ST ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ 15 ਤੋਂ ਸਟਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਵੀ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਟੇ ਆਰਡਰਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਵੀ ਲਿਆਂਦੇ ਔਰ ਈਵਨ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਬਟ ਸਟਿਲ ਈਵਨ ਦੈਨ ਕਿ JNK ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ ਇਸੇ नहीं मनना करते, कदे एक बार ना कदे दूजा बार ना ला लेंगे कि ये मतलब डिसाइड नहीं होया। हाँ बट ये मतलब नुकसान करा दे साढ़े समाज की, बहुत नुकसान करा दे। प्लस जो धारा 370 हटाई है उदों का जोड़ा वायदे जोड़े देने से जोड़े मतलब JNK के ड्यूटी वो हाले तक नहीं इंप्लीमेंट होते। सेंटर के रूल्स 27% OBC रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो बिजनौर में बनी हुई फल और सब्जी मंडी में दुकानें अलॉट होने के बावजूद भी उनका कब्जा न मिलने के विरोध में आज यहां पर विरोध किया गया और किसानों ने बागवानी विभाग के खिलाफ अपना रोष दिखाया। इन किसानों की माने तो आज से करीब 9 साल पहले सभी औपचारिकताएं पूरी करने पर उन्हें दुकानें अलॉट की गई थी, लेकिन उन्हें इसके बाद फिर से कुछ औपचारिकताओं के जाल में उलझाकर विभाग उनका जो कब्जा है वो देने से आनाकानी कर रहा है। और हमें दुकान 2013 में अलॉट हो गई। आज हमें 8 साल हो गए हैं दुकान का पोजेशन लेते हुए। कभी कोई अड़चन आ जाती है, कभी कोई अड़चन आ जाती है। डिपार्टमेंट का यहाँ पे कोई आदमी कभी 2 महीने के बाद ट्रांसफर हो जाता है, उसकी जगह नया आ जाता है। कभी डिप्टी डायरेक्टर ऊपर से ट्रांसफर हो जाता है, कभी वो हो जाता है। आज तक हमें ना तो नक्शा पास जो डिपार्टमेंट ने करना चाहिए था ना वो मिला। कभी
म्यूनसिपैलिटी का प्रॉब्लम आ जाती है, कभी बिजली वालों की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी टाउन एरिया कमान प्लान की प्रॉब्लम आ जाती है। किराया भी दिया नहीं। हम लोग किराया भी दे रहे हैं, हमें लाइसेंस भी 5-5 साल की फीस हमने भर दी हुई है, और आज हमें ये कह रहे हैं कि यहाँ फट पे मंडी स्टार्ट करो। हमने टोटली इनकार कर दिया। हमने कहा जी पहले हमें दुकानों को पोजेशन दो, हमें नक्शा पास करवा के दो, हम अपनी दुकानें बनाएंगे तो हम फड़ को यूज करेंगे। ये आज हमारा मसला था। हमने इन दुकानों का पोजेशन लिया है, इसका हमने किराया दिया है, दुकान का लाइसेंस दिया है और पूरे पैसे दिए हैं। आज ये कहते हैं जी, वो उनसे पूछिए, वो कहते हैं जी 30% म्यूनसिपैलिटी वाले जो छुड़ाएंगे। क्यों छुड़ाएंगे? हमारी गलती क्या है? हमने तो 8 साल जो पहले पेमेंट की थी वो की थी 30-15 की, ना कि 20-15 की नहीं की थी। ये आप कह रहे हैं 20-15 बना लो, हम क्यों बनाएं? हमारी गलती है तो हम बनाएंगे। जब पूरी की पूरी गलती ही नहीं किया तो ये बनाएंगे। आज हमें इन्होंने मीटिंग बुलाई थी कि आप फड़ा पर जहाँ पर आपने सब्जी रखी, जहाँ पर सेल की। हाल ही में 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा चुकी कश्मीरी पंडित समाज के बच्चों की आज पीठ थपथपाई गई और एक गैर सरकारी संस्था द्वारा जगती टाउनशिप में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन बच्चों को सम्मानित किया गया। नगरोटा के यहां पर एसडीपीओ परोपकार सिंह और एसएचओ शौकत चौधरी ने इन बच्चों को सम्मानित कर भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं दी। ना देखे, यही एक काम उर्दू आज तक चला रहा है और इस कारण से जो है उर्दू, ये मैं धन्यवाद करता हूं पंकज लद्दू जी का, अपने कोल साहब का, अपने विजय मोजा जी का, जिन्होंने जो विनोद मोजा जी का, और कोल साहब का भी उनका नाम उनका याद नहीं आ रहा है, कोल साहब का, तो उन्होंने इस कार्यक्रम में मेरा साथ दिया और ये कार्यक्रम तब मैं कर पाया। और आप सबका भी, आप सभी मीडिया कर्मियों का धन्यवाद। मैंने 12th पास किया विद 98.4%, पूरे जम्मू में 4th पोजीशन लाई है। सबसे पहले मैं इस जो भी मैंने अभी अचीव किया है उसका सबसे पहला क्रेडिट मैं टीचर्स को देना चाहती हूँ, क्योंकि वो दिन रात हमारे लिए मेहनत करते थे। हमको कभी भी उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। जो समझना चाहते थे वो रात को दिन को कभी भी उनको कॉल करो, वो हर टाइम हमारे लिए अवेलेबल रहते थे। सेकेंड, अपने पेरेंट्स को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि वो हमारे लिए खड़े, हमारे सपोर्ट में हमेशा। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर 72 घंटों में उनकी मांगे नहीं मानी गई तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यूनियन के प्रधान रिंकू गिल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चेताया कि 3 दिनों से मांगे न मांगे जाने पर सफाई कर्मचारी एक दिन की हड़ताल करने पर मजबूर हो गए हैं, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। दरअसल सफाई कर्मचारी यूनियन अनियमित सफाई कर्मचारियों को नियमित करने सहित अन्य मांगों से प्रशासन को अवगत करवा चुके हैं, जिसका आरोप वो बार बार लगाते हुए भी नजर आए और अवगत करवाए जाने के बावजूद भी उनके मामलों से संबंधित फाइल सचिवालय के टेबलों पर धूल फाक रही है। गवर्नमेंट को और डिपार्टमेंट को ये कहना चाहते हैं कि अगर 72 घंटे में 3 दिन में अगर हमारी डिमांडों पर गौर नहीं किया जाता, हमारे साथ बातचीत नहीं की जाती, तो मजबूरन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक जो मुलाजिम है वो सड़कों पर उतरेगा। तो और 72 घंटे के बाद हमारी 1 डे स्ट्राइक होगी। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमेशा हमारी आवाज को काफी मेमोरेंडम दिए डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को, और अभी तक जो भी हमारी डिमांडें थी, जैसे कि 61 लोग जो ड्राइवर और कंप्यूटर ऑपरेटर जो कि काफी समय से लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उनको परमानेंट नहीं किया जा रहा। साथ ही साथ 600 आदमी जो कैजुअल जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं, अभी तक उनके इंटरव्यू जो हैं वो शुरू नहीं किए जा रहे हैं। और जैसे कि 600 आदमी जो हमारा पहला कैजुअल लगा हुआ है, अक्टूबर को वो 7 साल कवर कर जाएंगे, उनको परमानेंट करने की डिमांड थी। चलिए, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।